And my guest is here. Let me just also put them on and take it there. So, Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, Sidra, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक. I'm just trying to get my angle right. This is the first time you my debutant when it comes to the StreamYard thing. It's very new to me, and a lot of people had been talking about it. A lot of my friends were helping me sort of put it together. But thank you so much for making time and doing this. How have you Thanks a been? lot. How's Ramzan for you? रमज़ान has been really good. और वैसे मेरे लिए नॉर्मली रमज़ान के अंदर होता ये है कि मैं जानबूझ के अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल जो है वो पार पे बिल्कुल नीचे ले आता हूँ. तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो उसको आपको पूरा साल टाइम नहीं मिलता, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता. तो आप यू आर ऑलवेज ऑन द रन एंड personally, I'm a kind of guy who's a hustler. So I'm always hustling all the time. So this So is, what I about think, during the month of Ramzan? आपको लग रहा है कि अभी भी भाग दौड़ उसी तरह जारी और सारी है, या because we got 1 month to be sort of home, work from home, और काफी चीजें relax हुई भी थी. Did that affect you in any way? मैं वही कह रहा था कि सो हमेशा रमजान इस तरह होता है. दिस इज द फर्स्ट रमजान वेयर Noman is keeping us up on the toes. so and especially with this new initiative, this is very close to our heart in terms of not only as an individual but as a company. This project is very close, and we've been talking about this project for a very long time, but now this is something, I mean, we are ready to roll it out, and we are ready in terms of अच्छा, हाजिक, जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया ना, मैं उनको जरा बताते चलूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजिक अहमद, एंड हाजिक इज फ्रॉम फूड पैंडा. और सिंस यू गाइस हैव बीन मिसिंग ईटिंग आउट, इस तरह वैसी अफ्तार पार्टीज नहीं हो रही जिसकी हमें आदत थी कि हम कहीं बैठे हों और घर में मौजूद हैं, घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन जायका बदलने का कभी कभी दिल चाहता है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू लर्न दैट फूड पैंडा इज इनिशिएटिंग समथिंग कॉल्ड घर का खाना, यानी फूड पैंडा होम शेफ्स. और ये बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बिकॉज इसमें 1 लाख लोग जो समझते हैं कि वो खाने में महारत रखते हैं और वो कुछ अच्छा पका सकते हैं, तो फूड पैंडा उनको कह रहा है कम बी अ पार्ट ऑफ अस एंड अर्न व्हाइल यू डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. आज़िक, मुझे बताएं, this is already on the go, right? So there are home chefs who signed up with you guys. कितने home chefs हैं और ज़्यादातर उनकी specialities क्या हैं? How is it growing for you? So we started off this project back in November. So we figured out that there are a lot of, so apart from our general inventory, the restaurants that we already had on board, we found out that we already had few vendors who were already working from home. So that was a starting point back in October or November, end October, early November. That is when we started learning about this new project, and how these home chefs are actually working from home, and what has been their experience. From there on, we tested out this model back in December, and from 1st January we were up and running. But we like I said, I mean, this was always on the cards to go big and give a big shout out. But we wanted to make sure that our infrastructure is ready enough to absorb that kind of that kind of surge that we're going to get. So I think now we're ready. So in speaking of the numbers, we have, I think, around 1,000 home chefs on board for the past couple 1,000 home chefs, in across 1,000 home chefs आपके पास ऑलरेडी ऑन बोर्ड है. मेरे लोग, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आपको कुछ बहुत जबरदस्त सा पकाना आता है, कभी आप समझते हैं कि यार you know what, Sidra, this is my signature recipe, चाहे आप मर्द हो, खातून हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, now is the time to earn some extra cash. And हाजिक, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, people are worried about making their expenses meet, यानी जितने खर्चे आ रहे हैं आने वाले दिनों में मुश्किल हो रहा है, बिकॉज जो हमारे ट्रेडिशनल रेवेन्यू के रूट से जो इनकम हम कमा रहे थे वो उसको काफ़ी धचका लगा है. सो डू यू फील आपका ये इनिशिएटिव लोगों को हेल्प कर रहा है? फीडबैक क्या आ रही है? जो लोग ऑन बोर्ड आ रहे हैं वो इसको सीरियसली ले रहे हैं या वो इनकी सिर्फ हॉबी है ये? So initially, when I started having this conversation with these home chefs, at that point in time, nobody kind of understand the power of this platform. And for them it was just another passive income. For few, yes, it was a bread and butter, but most of the people, they were not really taking it as a first hand income, I mean. So
So then, but now when I speak to home chefs, I mean, just to give you an example, एक home chef है, the other day I was having a conversation with her. वो उन्होंने बोला जी मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मैंने जो है वो मैंने अपने पापा से बोला कि जी मैंने काम करना है, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है. But then she kind of signed up. She signed up. Then she got through the whole process. She was up and running. Then she started doing around I think 10 orders or 15 orders a day. उस टाइम पे देन शी टोल्ड अस कि उनके अब्बू को थोड़ा सा लगा कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा काम चलना शुरू हो गया है. बट नाउ she said that this is her only source of income. और उनके अब्बू जो हैं, दे मेक श्योर कि वो पैकेजिंग के अंदर उनका हाथ बटा रहे हो, जब राइडर आ जाता है हमारा तो वो उनको बाहर जाके डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि उनका अपना जो बिजनेस था या जो भी है वो समहाउ ऑब्वियसली बिकॉज लॉकडाउन और शटडाउन वो नहीं चल रहा था. लेकिन तो ये वाली जो स्टोरीज हैं वो अब हमें जब सुनने को मिल रही हैं, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. इवन लाइक आई मीन आई टेल यू व्हाट आई मीन, I had a whole lot of retail experience. So वहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जहाँ पे ये सेल्स था फ्रॉम फैशन रिटेलर्स एंड व्हाट नॉट. वो सब अब आपको पता है कि इस वक्त रिटेल, फैशन रिटेल की या इन जनरल रिटेल की क्या सिचुएशन है आउटलेट्स की. तो वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है जो कुछ कंपनीज से ले ऑफ हो गया सब, तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं. वो लोग बहुत ज्यादा पिछले 1 महीने के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. और वो चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं उनको सिर्फ उठा के लिंक दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड, दिस इज समथिंग व्हिच इज लेजिट, and once you get on board, only then you would realize the power of this platform. We have seen people like starting from 5 orders a day or 2 orders a day, and now within 1 or 2 months they have actually scaled it up to 30 orders or 40 orders a day. Wow. अच्छा, एक और चीज हासिक यहाँ पे मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि अक्सर मेरे भी शोज में ना पीपल कीप आस्किंग फॉर सॉल्यूशंस. हमसे कहते हैं कि जी हमें भी पता है हालात खराब हैं, आप हमें रोजाना बता रहे हैं, डरा रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाना, तो ऐसा क्या है जो हम घर बैठ के कर सकते हैं. एंड आई वांटेड टू टेल एवरीबडी आउट देयर कि दिस इज एन इनिशिएटिव आई फाउंड आउट अबाउट. अगर आपके पास हुनर है, कोई अच्छी सी रेसिपी है और मिनिमल आपका बजट, आप इन्वेस्टमेंट आप कम से कम करना चाहते हैं, बिकॉज घर में आपके पास सामान होता है, खाने पकाने का आपके पास स्टोव वगैरह, oven वगैरह मौजूद है, and if you have something that you feel people will find value in. सबसे बढ़कर ये यार कि हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स का खाना खा के बोर भी तो हो जाते हैं, वो घर के खाने का हमें टेस्ट चाहिए होता है. आज़िक, तो अभी तक जो 1000 से ज्यादा आपके पास होम ग्रूम शेफ्स हैं जो फूड पैंडा का पार्ट है, इनकी सबसे ज्यादा फेमस रेसिपीज कौन सी हैं? सबसे ज्यादा लोग पसंद क्या करते हैं? मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, बिरयानी का दिल चाहता है, घर का आलू गोश्त चाहिए, क्या चीज है जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त स्टडी है. हम ये बड़ा मजा इस वक्त इसलिए भी आता है जब हम इस तरह के स्टैट्स में घुसते हैं, तो उसमें बड़ी जबरदस्त फाइंडिंग्स मिलती हैं. एक जो फाइंडिंग है वो ये है, मैं आपको बताऊंगा, आप भी हैरान होंगी. सो हमने स्पेसिफिकली कराची के अंदर सर्वे, ईटिंग हैबिट सर्वे किया. हमने बोला जरा चेक करते हैं कि लोग ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, ठीक है. क्योंकि फूड पैंडा जनरली जो था वो हमेशा ऐसा था कि यार आपने बाहर का खाना खाना है तभी आप फूड पैंडा के ऊपर जाएंगे, ठीक है. आपने जो डेली कंजम्पशन का फूड है जो कि हम असल में खाते हैं, जो कि हमारे घर वाले बोलते हैं बाहर का खाना नहीं खाओ, खाना खाओ, तो वो जो घर का खाना था इट वाज मिसिंग. तो हमने क्या किया, हमने बोला चलो सर्वे करते हैं. हमने एक सर्वे किया, देन वी फिगर्ड आउट कि देयर आर फ्यू जोन्स इन कराची जो कि 97% ऑफ द पीपल दे कंज्यूम सालन एट डिनर टाइम, ठीक है. अच्छा, अगर मैं पूरे कराची की बात करूं तो 87% जो लोग हैं वो अंडा पराठा और चाय के ऊपर अपना गुजारा करते हैं ब्रेकफास्ट में, ठीक है. अच्छा, ये वो लर्निंग्स हैं. देन वी ट्रांसलेटेड दीज काइंड ऑफ लर्निंग्स इनटू आवर होम शेफ्स. वी मॉडरेटेड देयर डिश टाइप्स एंड वी मेड श्योर कि उन जगहों पे वो लोग वो कुजीन्स कर रहे हो और या वो डिश टाइप्स कर रहे हो. और अभी मैं आपको बताता हूँ, जो होम शेफ के अंदर बड़ी जबरदस्त लर्निंग है कि हमने लास्ट मंथ दाल चावल, दम का कीमा एंड खाउसे, ये 3 प्रोडक्ट्स ऐसी थी कि जो मतलब स्पेशली होम शेफ्स के लिए बहुत फेवरेट थी. वो जो लोग घर का खाना वो जैसे हम कहते हैं, अच्छा, जितने लोग कॉलेज या स्कूल लाइफ में पाकिस्तान में रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं. एक तो वो जो हमारा टिपिकल बन कबाब होता है, कैंटीन की बिरयानी चाहे जैसी भी हो हमें बहुत पसंद होती है, दाल चावल कुछ खास दिनों में वो लोग रखते हैं. तो ये आपके स्टेपल्स होते हैं कि आपका टेस्ट बड ना उसको कभी भूलता नहीं है. और आज
रोजा भी था और गर्मी भी थी, मुझे याद, यानी जैसे आपने बोलना शुरू किया मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। हासिक, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ, जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कि आई विल ऑल्सो बी इंटरव्यूइंग सम फैंटास्टिक अमेजिंगली टैलेंटेड शेफ्स, जो कि ये घर का खाना होम शेफ जो इनिशिएटिव है फूड पैंडा का, फूड पैंडा होम शेफ का पार्ट है, एंड देयर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और उनकी मजे मजे की कहानियां हैं। मैंने उनसे ये भी पूछना है कि ये जो रेसिपीज वो बना रहे हैं, इसका कॉपीराइट किसके पास है? अम्मी से सीखी थी, दादी से सीखी थी, सास से सीखी थी? सबसे क्यूट लगता है मुझे हाजिर, कभी किसी से दोस्त से बात करो ना और उसको कॉम्प्लीमेंट करो, उसको कहो कि यार ये बहुत अच्छा बना है, तो वो कहेगी हाँ बनाया तो शायद पैकेट का मसाला और फलाने मसाले से, लेकिन मैंने फिर अपने एडिशंस किए, अपने एडिशन के, सो वो अपना तो तड़का होता है वो देखिए, आप बने। देखिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी होता है ना उनका। तो वो हाँ, मैं आपको बड़े मजे, एक और बात बताता हूँ। ये हम एक हमारी होम शेफ है, हम उनके पास गए, हम वैसे ही ग्राउंड वर्क हम कर रहे थे, हमने उनसे जाके कुछ लर्निंग्स लेनी थी। उन्होंने हमें बताया कि उन पास उनकी एक बिरयानी है जिसको वो शाही बिरयानी के नाम से जो है वो सेल करती हैं। उनकी जो रेसिपी है वो 5 जनरेशंस अगो वो रेसिपी है जो उनके पास चलती हुई आ रही है। मतलब उनकी 5 जनरेशंस पहले की वो एक रेसिपी है जो शाही बिरयानी थी, और वो अब चलती हुई आ रही है, और वो वाली बिरयानी जो है वो जो है उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचते हैं। तो और उसका उनको बड़ा जबरदस्त मिलता है। हमने बोला जी हमें थोड़ा सा आप बताएं कि इसकी रेसिपी क्या है। बोला दौड़ अभी जाए मैं यहाँ चाहूंगी से। कि फूड पैंडा ना एक काउंटर शुरू करे और सिर्फ कराची शहर में हम देखें कि हम कितनी तरह की बिरयानियां अवेलेबल हैं। आई थिंक एवरी हर 100 गज के बाद बिरयानी का फ्लेवर बदल जाता है। आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, अगर आप जनरल इन्वेंट्री पे देखें ना, मैं देखूं अगर टॉप प्रोडक्ट का फिल्टर लगाऊं, मैं बोलूं जी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट बिकती है? चिकन बिरयानी, बाय फार। चिकन बाय फार बिरयानी? चिकन बिरयानी, बाय फार। वाओ! अच्छा, बाय मेरे लिए फार वैसे चिकन बिरयानी इज नॉट बिरयानी। आई लाइक रेड मीट बिरयानी, चाहे रेड वो मीट भी पता तो बिरयानी। चले कि भाई कोई प्रोटीन जा रहा है। लेकिन उसकी कंजम्पशन आई डोंट नो, मेरे ख्याल से शायद उसकी कंजम्पशन बहुत सारे, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप कुछ और सोच रहे होते हैं और आपकी अजम्पशन कुछ और होती है, लेकिन आपको स्टैट्स बिल्कुल टोटली 360 डिग्रीज अलग ही कुछ बताते हैं। सो एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और चीज जिंगर जो है, जो हाँ। आपका जिंगर बर्गर है, क्रिस्पी बेसिकली बर्गर, आप खाली जिंगर की बात है, क्रिस्पी बर्गर जो है, वो इट्स वन ऑफ द टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तानी कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त। देन पिज्जा है, चिकन टिक्का है, तो ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इनके होते हैं। लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि विद होम शेफ्स एक बहुत बड़ा गैप है। हमने एक चीज हमने देखी कि एपैक रीजन में फॉर एग्जांपल जो फूड डिलीवरी सर्विसेज चल रही हैं, वहां पे सक्सेस का राज क्या है? वहां पे ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान 200 मिलियन की आबादी होने के बावजूद वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाता लोगों के लिए, जो जो उन कंट्रीज ने बिल्कुल छोटी सी अपनी इकोनॉमी से कर ली हुई है? उसका जो एक फंडामेंटल एक जो रीजन है ना, वो ये है कि दे डिग डाइव इनटू द डाटा एंड दे टेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट। हमारे पास हमने 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 फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टडी की, और उसमें हमें पता लगा कि पाकिस्तान में हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बाय फार 95% ऑफ द रेस्टोरेंट्स वो सिर्फ आपको स्पेशलाइज्ड फूड देते हैं, वो आपको बाहर का खाना देते हैं, वो आपको वो खाना नहीं ऑफर करते जो कि आपके डेली कंजम्पशन का फूड है। आप यस। डेली, ठीक है, अच्छा अब और जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि हमारी वैल्यूज के मुताबिक जो घर का खाना है वो बहुत करीब है। मतलब कुछ खवातीन जो हमसे पिछली जनरेशन की हैं वो तो ऑफेंड हो जाएंगी अगर आप उनको ये बोलें कि जी आप अरे बाहर का आपको खाना मैं खाइए। अपने घर की बात बताती हूँ ना, हम गए थे न्यूयॉर्क मैनहट्टन, हमारी अम्मी हमारे साथ थी, और हमने यानी कजन भी साथ है, कोई हमें बताया कि वहां का फलाना पिज्जा बड़ा मशहूर है, कोई कहे नहीं यार मेरा तो सुशी खाने को दिल चाह रहा है। हाजिक, आई किड यू नॉट, माय मदर मेड श्योर कि इन द मिडल ऑफ मैनहट्टन न्यूयॉर्क हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है और वहां पे हमने दाल माश खाई है, और हम सारों के मुंह बने हुए थे, हमने कहा यार ये क्या हुआ है हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तानी खाना ऐसा है अभी, यहाँ तक कि हम जैसे अम्मी अब्बू के साथ कभी फैमिली आउटिंग हमने प्लान भी की, वी गो वी ईट कॉन्टिनेंटल, फिर वो कहते हैं अच्छा जी ये स्नैक्स तो हो गए, रोटी छोटी कब आ रही है? रोटी छोटे अगर रोटी सालन ना हो, आई एम ऐसे ही है, सॉरी, पाकिस्तानी बिल्कुल इसका सही। खाना पूरा नहीं होता। वो पूरा पिज्जा खा के भी बोलते हैं रोटी नहीं आई अभी तक। हाँ। अच्छा, वो मुझे बोलते हैं जैसे हाँ। चाइनीज फूड, क्योंकि हम्म, अगर चाइनीज हमारे यहाँ का चाइनीज फूड देख लें तो वो घबरा जाए, क्योंकि सब आ हमने जाए, उसमें भी कुछ अपनी 360 डिग्री बल्कि 180 डिग्री उसको शिफ्ट दिया हुआ। बिल्कुल तो सही है। अगर कोई होम शेफ कहे कि यार मेरा जो मंचूरियन चिकन है ना वो सबसे जबरदस्त है, तो आप सही। लोग उसको भी केटर करेंगे, या कोई ऐसी कंडीशन है कि सिर्फ पाकिस्तानी खाना बना के होम शेफ्स नहीं नहीं, फूड पैंडा से देखिए एसोसिएट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे होम शेफ्स हैं जो लजानिया के एक्सपर्ट्स हैं,
ठीक है, वो इटालियन पास्तास दे रहे हैं, वो कोई एक दो हैं जो मैक्सिकन कुजीन्स कर रहे हैं, और उनके अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं लोगों की। सो आपको पता है क्या करना, आपको ये देखना है कि आपकी नीश क्या है, आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं। और देखें, अच्छी बात ये कि हमारी जो टीम है उसके पास ये सारा डाटा होता है। जब भी कोई, इफ एनीबडी वांट्स टू गेट ऑन बोर्ड एंड दे वांट टू नो द स्टैट्स कि यार मैं इस जगह पर हूँ और मैं यहाँ से काम करना चाहती हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं किस डिश टाइप से स्टार्ट करूं या किस डिश टाइप पे करूं। तो हमारे जो एसोसिएट्स हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उनको मॉडरेट करते हैं, उनको बताते हैं कि वो पूरा 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 दे गाइड देम थ्रू द होल प्रोसेस। अच्छा, ये अच्छा वाली तो डिश टाइप हासिल, करें, इस अगर प्राइस। किसी को खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता है लेकिन हमारे घरों में पैकिंग वगैरह का सेटअप नहीं होता, तो आप लोग क्या होम शेफ को ये भी ट्रेनिंग दोगे कि उसको पैक कैसे करना है सो दैट इट रीचेस इन द राइट वे टू द कस्टमर? 100%, 100%। अच्छा, इसमें ये भी हमारी लर्निंग है, सिंस वी आर इवॉल्विंग एज वेल, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द होल स्ट्रक्चर। कुछ होम शेफ्स ऐसे थे कि जिन्होंने स्टार्ट किया और उनकी बहुत अच्छा टेस्ट था, जबरदस्त टेस्ट था, लेकिन ना उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो हमने फिर जरा थोड़ा सा चेक किया कि उनके क्या प्रॉब्लम थी। तो मेजर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो पैकेजिंग थी वो थी, वो सिंगल सर्विंग के, फॉर एग्जांपल सिंगल सर्विंग्स वाली नहीं थी, वो डबल थी या फैमिली पैक टाइप था। अब जेनरस होता है, पोर्शंस। वो जनरस पोर्शन, ठीक है, वो उनको एक एक महीने के बाद जाके उनको समझ में आती है कि यार प्रॉफिटेबिलिटी तो बनी नहीं, तो कॉस्टिंग कहाँ पर है। तो हमारी जो टीम थी उसने फिर इस तरह के होम शेफ्स को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने अपनी सर्विंग्स ठीक नहीं रखी हुई। तो हम उनको क्या करते हैं कि उनकी सर्विंग्स ठीक रखने के लिए पैकेजिंग उनको बताते हैं कि आप ये वाली पैकेजिंग इसके लिए यूज करें और ये वाली पैकेजिंग इसके लिए यूज करें। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज समथिंग which is something which is we are trying to do। वो हम ये कर रहे हैं कि हम पैकेजिंग को तो खुद पैकेजिंग शायद होम शेफ्स को जो है वो प्रोवाइड करना शुरू करें। मतलब ताकि वो स्टैंडर्डाइज भी हो जाए और उनके कुजीन के हिसाब से उनकी रेसिपी। अच्छा, अब लोगों का जी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। हाजिक, आई सी मरियम रिजवान जिसने बहुत सारे लोगों को टैग कर दिया। आई नो इसमें है जी मरियम, महरीन सुराथिया, खतीजा सलीम, मोहम्मद जुबैर सलीम सुराथिया। आई बिलीव दीज आर ऑल पीपल, या तो उनके पास कुछ जबरदस्त रेसिपीज हैं या आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर हमारे पास आया जी आयशा उजैर इज सेइंग ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय फूड पैंडा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फॉलो योर पैशन एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। फिर नवीद मेमन ने आपसे सवाल किया है, एनी अपकमिंग इन सखर एंड सिंध, करंटली फूड पैंडा सर्विस इज स्टॉप्ड हियर। ये भी जरा क्लियर करें हाजिक, कहाँ कहाँ डिलीवरी हो सकती है? डिलीवरी इस वक्त तो हर जगह पर, ऑलमोस्ट हर जगह पे ऑन हो गई हुई है। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं रही है जहाँ पे डिलीवरी ऑन हो। टाइमिंग्स का थोड़ा सा है, कुछ जो प्रोविंशियल आपको पता है वो प्रोविंस वाइज जो है वो टाइमिंग्स का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिलीवरी ऑलमोस्ट हर जगह पर ऑन हो गई हुई है। इवन सक्खर के अंदर, आप आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर, लेकिन आई थिंक सक्खर में ऑन है, सक्खर में हो रही है डिलीवरी। हाँ जी। अच्छा, अनीता वजाहत सेज इट्स एन इट्स एन अमेजिंग सर्विस। एक दफा फिर आपको बताते चलें, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जस्ट नॉट फूड पैंडास ट्रेडिशनल सर्विसेज, जिसके बारे में आप हर कोई जानता है, बल्कि हम बड़ा मिस भी कर रहे थे इसको लॉकडाउन में। अब ये रिज्यूम हो गई है। कराची की अगर बात करूं तो 5 बजे से लेके 10 बजे तक यू कैन ऑर्डर फूड। और जो एक्साइटिंग चीज हाजिक के साथ मैंने आपके लिए अनाउंस करनी थी कि आई विल बी इंटरव्यूइंग सम एक्सक्लूसिव वेरी टैलेंटेड ऑथेंटिक होम शेफ्स जो कि अपनी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे, कैसे उन्होंने ये रेसिपी और उनका इंटरेस्ट कैसे आया, फूड पैंडा के साथ उनकी एसोसिएशन क्या है, और हम उनसे जानेंगे उनकी सिग्नेचर रेसिपी के बारे में भी। अच्छा, और इसके अलावा हाजिक आपके से बार बार एवरीबडी इज सेइंग दैट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे ये बताएं कि इस वक्त बड़े लोग परेशान भी हो गए थे कि स्टार्टअप्स और इनिशिएटिव्स हो सकता है बिल्कुल डाउन हो जाएं, फंडिंग ना मिले। अभी भी कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल लोगों के जहन में यही होता है कि मेरे पास पैसे पता नहीं हो ना हो। तो अगर आपने फूड पैंडा होम शेफ बनना है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? मुझे अब शायद जो मैं बात करने लगा हूँ, बहुत सारे लोग शायद मुझे ये बोलें कि ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया और हमने वहाँ उनसे जो लर्निंग्स ली हैं उससे हमें जो कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्ड है ताकि लोगों को, जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को बड़ी क्लैरिटी हो कि हम ऐसी बात नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो हमने एक जनरल आइडिया लिया कि जो हमारा सबसे ऐसा भी होम शेफ है जो बिल्कुल स्टार्ट करता है, वो जब स्टार्ट करता है तो वो करता है अराउंड 4-5 ऑर्डर्स अ डे से। ठीक है, अगर आप 4-5 ऑर्डर्स अ डे से स्टार्ट करें, पहली बात है ऑनबोर्डिंग फीस कोई नहीं है।
ठीक है। आप यू गेट ऑन बोर्ड ऑनलाइन, ठीक है। आपको कॉल, हमारे जो बीडी है वो आपको दे गाइड यू थ्रू द प्रोसेस एंड यू आर अप एंड रनिंग। अब इस वक्त तक, जब तक आप लाइव हुए हैं, आपका 1 रुपया भी नहीं लगा है, ठीक है। आपने सिर्फ एक लिंक, अपने लिंक के ऊपर अपनी 3-4 डिटेल्स दी हैं, यू गॉट अ कॉल, somebody गाइडेड यू थ्रू द प्रोसेस एंड यू आर लाइव, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी तक आपका 1 रुपया नहीं लगा। अब जो है आपके पास आना है ऑर्डर, तो आपने करनी है उसकी प्रेपरेशन। हम जो है वो ये क्या करते हैं कि एक मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन अगर बताऊं, वो ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 5 ऑर्डर्स के ऊपर काम शुरू किया, 300 रुपीज का आपका बास्केट साइज है, ठीक है। तो आपने 1500 एसेंशियली पर डे के ऊपर आपको आपकी जो है वो रेवेन्यू आपका जनरेट होगा, आपकी सेल होगी, ठीक है। 1500 रुपए को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें, जो कि हमारे 1 हफ्ते का पूरा साइकिल होता है, तो दिस इज अराउंड 10,000 समथिंग रुपीज, ठीक है। एक जो एवरेज फूड कॉस्ट आती है, वो सिर्फ आपने अपने लिए खरीदनी है, जो आके आपने ग्रोसरी करनी है, जो आपने इंग्रेडिएंट्स खरीदने हैं, सब कुछ है। अगर हम उस फूड कॉस्ट के ऊपर देखें ना, तो 1 हफ्ते के लिए टोटल 3,000 रुपए आपके लगते हैं, जो कि आपने 1 हफ्ते के ऑर्डर्स का पूरा सामान अपने लिए जो इकट्ठा करना है, ठीक है। 1 हफ्ते का तो एक हफ्ते के जो आपका रेवेन्यू होगा, उसके ऊपर तो फूड पांडा आपको वैसे ही पे कर देगा, क्योंकि आपके 1 हफ्ते के ऑर्डर जो है फूड पांडा ने आपको पे कर दिया, आपको वो पैसे वापस आ गए। लेकिन आपने जो जिस चीज का इंतजाम करना है अपने लिए, जो इंग्रेडिएंट्स का, ग्रोसरी का इनिशियली 1 हफ्ते के जो इंग्रेडिएंट्स का इंतजाम करना है, वो आएगा आपका तकरीबन 3,000 रुपए का ऑन एवरेज, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वहां से आप फिर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन इट, और उसके बाद फिर आप 1 महीने तक चले जाएं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले दिन से 15 ऑर्डर आने शुरू हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आप 50 ऑर्डर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 100 ऑर्डर करते हैं। आपको पता है वो एक खातून थी जिनका, जो हमारी एक होम शेफ है, बड़ी जबरदस्त होम शेफ है, शी इज द टॉप ऑर्डरिंग होम शेफ इन ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जिन्होंने बेल रिंगिंग सेरेमनी भी की थी। उन्होंने जाके वहाँ पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलाया था उनको बेल रिंगिंग सेरेमनी में, तो शी डज 1000 ऑर्डर्स अ डे, 1000 ऑर्डर्स इन अ मंथ। शी डिड एक्चुअली लास्ट 2 मंथ्स बैक 1000 ऑर्डर उन्होंने 1 महीने के अंदर किया है। तो आई थिंक, और वो बिल्कुल बड़े वो देसी से सेटअप से अपना जो है ना वो बिजनेस चलाती हैं। तो मेरा अपने ख्याल है बड़ी मजेदार बात क्या हो रही है, पीपल आर गेटिंग सो इंस्पायर्ड। मरियम ने मुझे बताया, जब मैंने उनकी सारे टैग किए हुए लोगों का नाम लिया, उन्होंने कहा यस दे आर माय सिबलिंग्स एंड दे मेक द यम्मीएस्ट फूड। तो एक दूसरे को अब सारे बिजनेस आइडियाज फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर नाउ आई सी वर्दा इकबाल who's tagged तुबा इकबाल and said देखो यहाँ पे कैसे पैसे बनाने का तरीका बताया जा रहा है। फिर हमारे पास है अहमद मलिक, great initiative. Jari Abbas says again amazing. Manahil Siddiqui is also here. So ladies, yes, if you have a great recipe, आपकी बिरयानी मशहूर है या प्रॉन करी मशहूर है या desserts, I think कि मुझे desserts में हमेशा दिल चाहता है कि कोई बाहर से बनाए। अच्छा, मुझे बताएं, इंटरेस्टिंग बात ये हुई है, और ये मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहती हूँ, जो आपने भी कहा कि कई लोगों की जो प्राइमरी इनकम थी वो हो गई खत्म। तो खवातीन ने, क्योंकि हम कहते हैं ना जिंदगी के 2 पहिए होते हैं, मियाँ बीवी एक साथ एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो हस्बैंड्स का अगर कोई बड़ा सेटअप भी था एंड दे वर प्रोवाइडिंग फॉर एग्जांपल फ्रोजन फूड्स, दिस दैट, नाउ दे हैव कन्वर्टेड दैट इनटू अ मेन स्ट्रीम फूड पैंडा होम शेफ बिजनेस एंड दैट इज वर्किंग ग्रेट फॉर देम। हाजिक, अच्छा, किन शहरों में इस वक्त आपके फूड पैंडा होम शेफ्स मौजूद हैं? इस वक्त हमारे पास अराउंड 14 सिटीज में हम हो चुके हैं। बाकी सिटीज के अंदर हम लोग बड़े अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट मंथ हमारे काफ़ी सारे जो जोन्स हैं वो पॉपुलेट हो चुके होंगे। आई थिंक जो टियर 2 सिटीज है उसके अंदर से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, दिस इज समथिंग व्हिच वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। हम ये हमेशा ये सोच रहे थे कि जी हम पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाली जो हमारी टियर 1 सिटीज हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा आएगा। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त जो हमें मिला है रिस्पांस, वो मिला है जेहलम से बहुत अच्छा मिला है, एबटाबाद से मिला है, देर आर होम शेफ्स इन बहावलपुर, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, ये जो जगह, गुजरांवाला, मतलब ये वो सिटीज हैं जहाँ पे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मॉडल के ऊपर, एंड दे आर डूइंग गुड ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे वेंडर का जो हमारे नॉर्मल रेस्टोरेंट जो बेस है उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। तो घर तो सारे हैं और खाना भी सब पकाते हैं, खाने वाले भी बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है देखो कल्चरल वैल्यू भी तो होती है। मैं आपको बताऊं, जैसे कल मेरी बहन की बर्थडे थी और हम सारे ये सोच रहे हैं लॉकडाउन में ना जा सके, शी हैज 2 यंग किड्स, तो हमने सोचा कि हम किस तरह जा पाएंगे, क्या करेंगे, एंड केक्स, आपको पता है बर्थडे इज इनकम्प्लीट विदाउट अ केक, सो वी मैनेज अ केक फ्रॉम अ होम बेकर ऑन फूड पैंडा एंड वी ऑल्सो गॉट her फेवरेट रेसिपीज, उसके पसंद के हमने उसको चीजें भी भिजवाई जिसमें सैंडविचेस थे, नूडल्स थे, एंड दैट वाज फ्रॉम अ दिल्ली अगेन फूड पैंडा। बट आई एम सेइंग दैट
इस तरह की मुश्किल के वक्त में हमारे दिल पे भी तो, हम ईगो पे भी तो ले लेते हैं ना कि बाहर से खाना मंगा के हमें खिलाया है, घर का खाना क्यों नहीं है। तो अब आपके लिए, अब आप घर का खाने से भी लोगों की तवाज़ो कर सकते हैं, ये तवाज़ो एक करें आप, बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल करें। और अच्छी बात ये कि जब आप अपने हमारा प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो उसके अंदर एक अलग से जो स्विम लेन है वो आ रही होती है जो घर के खाने की है, जो जो हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया कि अगर आपको बाइफिकेशन चाहिए टू ऑर्डर फ्रॉम घर का खाना, तो आपको वो अलग से उसके सारे जो होम शेफ्स हैं वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे अच्छा, होते हैं। मुझे बताएं, क्योंकि मैं आज ही देख रही थी और मेरे सामने भी है इस वक्त, हाजिर की बिरयानी का भी एक अलग बना दिया है क्योंकि बिरयानी इतनी ऑर्डर होती है उसको। बिरयानी, अब आपको समझ आया हमने क्यों बिरयानी का अलग बनाया है, क्योंकि वहाँ लोग लोग बिरयानी के पीछे, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट बिरयानी, इवन इवन आई लव बिरयानी। अरे मैं आपको बताऊं, कॉलेज के जमाने में तो मुझे कोई बिरयानी दिखा के किडनैप भी कर सकता था, मुझे ऐसा लगता था। आई एम सो क्रेजी अबाउट बिरयानी, एंड बिरयानी इज लव। और बल्कि कई दफा हम कहते हैं ना, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, आप बिरयानी थोड़ी हैं। ये मौजूदा अल्लाह मियां ने सिर्फ बिरयानी को दिया है कि वो हर एक को खुश कर देती है। अच्छा, बिल्कुल सही। फजल रहमान इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ही सेज Yeah. my I think it's not a question, it's a comment. I love the deal that they offer to the home chef. My wife has already signed up for this campaign. These guys are doing a great job. ओके जी, इसके अलावा आवर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन रूरल वुमेन, इनके साथ कोई काम किया जा सकता है? हाजिक, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप कैसे बिल्कुल, समझ? ये आई थिंक मैं आई एम गोना चेक द लिंक। ये हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं यूएसएड के साथ, अभी हमने कोलैबोरेशन की थी एंड वी कंडक्टेड अराउंड 6 सेशंस इन 4 सेशंस इन 6 cities, and they ran their management course to around 50 to 60 होम शेफ्स। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो हम बेसिकली हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम सिर्फ ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें हम ये मेक श्योर कर रहे हैं, बिकॉज दीज होम शेफ्स दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस, दे हैव नेवर डन एनी बिजनेस बिफोर, राइट? सो उनको पता नहीं है कि यार आपको अपना कैश फ्लो कैसे रन करना है, आपने फूड कॉस्टिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, व्हाट नॉट। सो ये वाली सारी चीजें अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि यूएस एड के साथ हमने एक सेशन रन किया था, वहां पे काफी सारी होम शेफ्स जो थी फॉर फ्री, टोटली फ्री, हमने उनको ये ऑनलाइन कोर्सेज कराए, मैनेजमेंट कोर्सेज, कि आपको अपने बिजनेस को रन कैसे करना है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो फॉरन ही हमें इम्पैक्ट मिला कि कुछ होम शेफ्स ने उन चीज़ों को, लर्निंग्स को लिया, अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट किया, एंड देन दे स्टार्टेड ग्रोइंग देयर बिजनेस। तो एक वो चीज़ है। बाकी कॉथम के साथ हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, क्योंकि उनका 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 नेटवर्क जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसमें होम शेफ्स ऑलरेडी उनसे वो ट्रेन होकर जाते हैं, छोटी टीयर 2 सिटीज़ के अंदर भी, टीयर 1 सिटीज़ में भी। इसके अलावा पीएसडीएफ के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है। वो लोग हमारे लिए होम शेफ्स को जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके काम कैसे कर सकते हैं। सो वी आर ऑल इन फॉर टू बिल्ड दिस इकोसिस्टम एज बिग एज पॉसिबल। आई मीन 1 लाख लोगों को अगर हमने ऑन बोर्ड लेकर आना है, तो हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। वी हैव टू कनेक्ट एवरीबॉडी who wants to add any value into the ecosystem. In fact, yeah. सॉरी, आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। हाजिर, फातिमा रिजवी जी ने पूछा कि हाउ कैन आई रजिस्टर, और इनको किसी ने ऑनलाइन ही बता दिया, अनीता ने बता दिया, तूबा इकबाल ने भी बता दिया कि restaurant.foodpanda.pk पे जाइए और आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक और सवाल आया है, दिस इज फ्रॉम उमेर अमीन वराचिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने पूछा है कि हाउ डज फूड पैंडा पे द शेफ, द होम शेफ, और फिर उसके बाद उन्होंने लीड क्वेश्चन एक और भी पूछा है कि डेली बेसिस पे आपको पेमेंट मिलती है या वीकली बेसिस पे? अभी हम जैसा बात कर रहे थे, वीकली बेसिस के ऊपर पेमेंट मिलती है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं डायरेक्टली। अब हमारे एक्चुअली हम लोग वी आर वर्किंग ऑन पैंडा पे एज वेल, व्हिच इज फूड पैंडा वॉलेट। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वंस वी इंटीग्रेट दैट, तो वो तो फिर आपकी डेली बेसिस के ऊपर आपके वॉलेट के अंदर आ जाया करेगा। तो विद इन फ्यू मंथ्स हम लोग वी आर गोना बी अप एंड रनिंग विद दैट एज वेल। तो अभी फॉर नाउ इट्स वीकली बेसिस। अच्छा, फिर इसके अलावा कुजीन्स की भी बताइएगा। आई थिंक वेरी सून हाजिक यू विल नीड टू हैव अलग सब सेक्शंस, जिसके अंदर पारसी फूड, बोहरी फूड, सिंधी फूड, बलोची फूड, क्योंकि जब होम शेफ्स आएंगे हर घर का एक अलग जायका होता है। आप देखिए, आलू गोश्त हम सारे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन किसी का कालू गोश्त बनता है, किसी का आलू गोश्त इतना अच्छा नहीं बनता। तो मेरा चल जाता है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कालू गोश्त। अच्छा, बाय द वे, मेरी सबसे फेवरेट डिश, अगर आप घर की पूछेंगे ना, मेरी सबसे फेवरेट डिश आलू गोश्त है। मतलब मैं आलू गोश्त का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन आप अब ये पंजाब से तो ताल्लुक नहीं है हमारा, तो देखें दैट पुलाव, इज आलू गोश्त और शामी कबाब, ये हमारा ईद का मेन्यू होता है साथ में ना? अचार, साथ में साथ में अचार।
अच्छा, चाहिए। ये तो जरूरी है। एक ये एक जरूर। होम शेफ को मैंने बताया था, उन्होंने वो ना अपनी डील दे रही थी दाल चावल की, और वो कह रही है ऑर्डर आ रहे हैं, ये है वो है। मैंने बोला आप एक काम कर दें, मेरी माँ ने अचार डाल दें, और अरे उन्होंने अचार डाला, उनके ऑर्डर ऑर्डर ग्रो कर गए उनके। आज़िक, ये आपकी एडवाइस तो एमिरेट्स ने भी फॉलो की। जब वो अपनी हलवा पूरी देते हैं वो तो साथ जबरदस्त, में मैंने सॉस बिल्कुल देखा है। के साथ अचार मैं आता है। आई वाज शॉक्ड। मैंने उसको बोला, मैंने सोचा कि एमिरेट्स में जरूर कोई पंजाबी बैठा हुआ है पंजाबी जिसने breakfast। जिसने जिसने जो है ना इतनी छोटी सी उसके अंदर जो है ना अचार डाल के रखा हुआ है, और ये सब और अमेजिंग, जबरदस्त जबरदस्त, यस। मजा आ गया था वो अचार। और आप एक्सपेक्ट नहीं करते यार, आप जहाज में बैठ के आपको अचार मिल जाए। गौरव आंटीज, मैं तो कहती हूँ जो ये कहती है ना कि भाई पूरा दिन वैसे घर वालों के लिए भी पकाते रहे और बाहर वालों के लिए भी पकाएं, आप कुछ ना करें। कुछ आंटीज की चटनी और रायते और अचार बड़े मशहूर होते हैं, सिर्फ वो बनाना शुरू कर दें। सीजनल बना लें, बेशक प्लम चटनी बना के देना शुरू कर दें। क्या ये ख्याल है? ये एक हमारी होम शेफ हैं जो लाहौर से काम कर रही हैं, और उनका वो मुरब्बे और अचार के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन पता है मसला अभी अभी इस वक्त मेरे ख्याल से उनका काम जो है ना, वो हमारे जिस तरह पैंडा मार्ट है, जो हमने अभी ग्रोसरीज बिजनेस भी अपना ऑन कर लिया है, वहां पे वाह। उनका काम थोड़ा सा ज्यादा उस तरह चलेगा, क्योंकि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, लोग जो है ना जब ऑर्डर करने के लिए फूड पैंडा के ऊपर आते हैं, वो उस वक्त भूख लग रही होती है उनको। ठीक है, तो उनको ये होता है कि यार मुझे जो है 15 मुझे 20 मिनट 25 मिनट के अंदर जो खाना मिल सकता है, मैं उसके बाद ऑर्डर करूंगा, मैं खा लूं। तो आई थिंक वो जो फास्ट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर, सो वी कॉल इट क्विक कॉमर्स। ठीक है, आपने शायद पहली दफा नाम सुना होगा, या पहले भी हो सकता है सुन चुके हो। क्विक कॉमर्स एक नई टर्म है जिस जो ई कॉमर्स से एक स्टेप आगे, सो विच एक्चुअली believes in to speed against anything else, राइट। सो हम क्या करते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि वो कितनी फास्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल है कि जो लोगों को जो जो रियल टाइम जो उसी वक्त जो खाना खाना होता है, और भूख के मारे उनका अगर बुरा असर हो रहा है, उनको खाना खाना है, तो आई थिंक ज्यादा आप उनके ऊपर फोकस करें, डिश टाइप्स के ऊपर जो उसी वक्त लोगों को सर्व कर सकें टू फीड देयर हंगर। हाँ। अच्छा जी, ये जैन मजहर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया एंड व्हाई आई हैव हाइलाइटेड दैट इज, इन्होंने कहा कि जो आपके राइडर्स हैं उनको आप एसओपीज कैसे फॉलो करवाते हैं। बट आई वाज रियली सरप्राइज टू सी जैन साहब, बिकॉज मैंने ये आज ही अपनी बहन के लिए सर्विस को किया था, और फिर जाहिर सी बात है जब खड़े हुए थे और ब्राउज कर रहे थे तो अपने लिए भी कुछ ऑर्डर किया। यू हैव द ऑप्शन फॉर कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी, यानी जो आपका राइडर फूड पैंडा से आएगा, दे कैन जस्ट ड्रॉप द पैकेज एट योर डोर स्टेप। यू डोंट नीड टू इंटरैक्ट विद द पर्सन, यू कैन पे इट ऑनलाइन ओनली। और आपको कोई वो जैसे कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, फासला रखना है। करेक्ट मी हाजिक, दैट्स ट्रू फॉर ऑल डिलीवरीज, राइट? यू कैन रिक्वेस्ट 100%। कॉन्टैक्टलेस बिल्कुल डिलीवरी। बिल्कुल 100%, 100%, क्योंकि हमारे राइटर्स को जो जब कोविड का सिचुएशन शुरू हुआ था, तो हमने वो टाइम जाया नहीं किया था कि सिर्फ बैठ के। तो हमने राइटर्स को ट्रेनिंग्स हमारी शुरू हो चुकी हुई थी, कि राइटर्स ने इस सिचुएशन के अंदर, बिकॉज वी न्यू दैट दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनी टाइम सून, सो हमने अपनी अपनी पूरी फ्लीट को इसके ऊपर प्रिपेयर किया था कि ये काम कैसे होता है। एंड बाय द वे, इन एवरी जोन whenever our shift starts, our riders come to a rider पुलिस, हमारी एक छोटी सी राइडर पुलिस होती है, उसके पास आते हैं, उनके आप टेम्परेचर चेक करवाते हैं, वो अपने ग्लव्स और मास्क चेक करवाते हैं, और फिर वो मेक श्योर, और उनको पता होता है कि ये वाले वो कंप्लाइंट राइडर्स हैं जिनके जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम इस वक्त सिर्फ उन राइडर्स को शिफ्ट देते हैं, काम करने की इजाजत देते हैं, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले से कंप्लाइंट राइडर है। हम अभी इस वक्त उन राइडर्स के साथ रिस्क नहीं ले रहे, जो राइडर्स जो है जिनका हमें पता नहीं है कि वो आगे जाके कंप्लाइंस करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम वो मेक श्योर करते हैं कि हमारे कंप्लाइंट राइडर जो है वो जाके ले। Absolutely. अच्छा, couple of last questions. हमारे पास आया है, I started this in Urangi town, contacted few households, stocked them with ration and asked them to make food. What a brilliant idea, शाहरुख। यानी सिर्फ और सिर्फ आप उनको राशन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं दे रहे, बल्कि उनको राशन दे रहे हैं, अगर उनके पास हुनर है कि वो कुछ पकाएं, and they can become home chef. This is exactly what the Chinese proverb is: don't feed the man with the fish, but teach him how to fish. How to Right? fish. I think bravo. I think people have ब्रिलियंट। amazing ideas. शाहरुख, आप बल्कि मैं तो बोलूंगा कि शाहरुख को कि प्लीज गेट इन टच विद अस एज वेल, एंड इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ नेटवर्क जहां पर आप कुछ लोगों की इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो जस्ट गेट इन टच विद अस, एंड वी आर गोना मेक श्योर कि वो लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, एंड वी कैन सपोर्ट देम एज मच एज वी ब्रिलियंट आइडिया। वो देखिए, वो जितने बेचारे हॉकर्स थे जो घर में पकौड़े बना रहे थे या एक बिरयानी की देग बनाते थे, एंड नाउ दे कांट गो आउट, सो आई थिंक एन एक्सीलेंट वे फॉर देम टू कंटिन्यू
गोइंग इज कि वो खाना बनाएं, खाना अपना एक दफा अपनी एसओपीज को फॉलो कराएं, रजिस्टर हो जाएं, एंड दे कैन स्टिल कंटिन्यू अर्निंग. सो दैट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट वे ऑफ एम्पावरिंग पीपल. अच्छा जी, एक और सवाल आपके लिए. वसीम अब्बास इज आस्किंग, इज फूड पैंडा वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट चकवाल? चकवाल में नहीं है अभी, अभी चकवाल में चकवाल में नहीं. नहीं है, बट वेरी सून. अच्छा इंतजार करो, हम आ रहे अच्छा, हैं. इसके अंदर वो चक्कर ये है कि हम चकवाल को फौरन ऑन कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू इज कि हमको मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास कुछ पूल ऑफ वेंडर्स हो एक कोई भी सिटी लॉन्च करने के लिए. तो चकवाल में एज सून एज वी गेट एटलीस्ट 20-30 वेंडर्स, so we will start the zone. बट आई थिंक दिस इज एन एक्सेलेंट आइडिया. लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई मुस्तहिक लोग हैं या वो बेचारे अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे, उनको राशन दे दें. बट हियर इज अ थॉट कि आप उनको खाना बनाने का सामान दे दें, उनके पास हुनर है एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू. पकौड़े का रेट लगाते हैं, कोई पापड़ बनाता है, कोई भी काम करता है, अगर आपके पास टेस्ट है यू गोना रियली फ्लाई हाई. अच्छा जी, नवीद साहब ने एक सजेशन दिया है, साथ ही सवाल भी है. आई थिंक व्हाट ही इज आस्किंग फॉर इज फिल्टर्स. नवीद ने कहा है देयर शुड बी अ सर्च ऑप्शन ऑफ फूड आइटम्स, एग्जांपल कढ़ाई, बर्गर, पालक पनीर in the Food Panda app. Currently I have found just list of restaurants and then items list. थोड़े बहुत फिल्टर्स तो हैं हाजिक. How will you take this one please? अच्छा, फिल्टर जो है ना वो ऑलरेडी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात कर रहे हैं आइटम लेवल सर्च की, उसको हम कहते हैं आइटम लेवल सर्च. वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो है वो हमारी टेक टीम के पास पहुंचा, वो चला गया है, और विद इन मेरे ख्याल से इन अ मंथ हम लोग उसको जो है ना वो हमारी ऐप की बाय द वे पूरी ओवरऑलिंग भी चल रही है. तो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. तो आई थिंक ये इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और ये एड्रेस हो जाएगा विद इन अ मंथ और सो. अच्छा, कभी कभी वैसे मैं भी ढूंढ रही होती हूँ, जैसे आप संडे को उठे और आपको हलवा पूरी का दिल चाह रहा है ना, तो आई डोंट वांट टू गो थ्रू रेस्टोरेंट्स, आई जस्ट वांट टू सर्च हलवा पूरी. भाई नियरेस्ट हलवा पूरी कहाँ असल है? में अभी होता ये है कि आप जब लिखते हैं ना हलवा पूरी, तो वो आपको रेस्टोरेंट्स वो दिखा देता है जो हलवा पूरी दे रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप बर्गर लिखते या हैं जिसके नाम में हलवा आ रहा है, या जिसके नाम में हलवा आ रहा है, तो वो जो है ना वो सारे रेस्टोरेंट्स देता है जिसमें हलवा या हलवा पूरी से रिलेटेड कुछ भी है. सो लेकिन इनकी बात ये है कि वो जब हलवा पूरी लिखें तो सिर्फ डिशेज आनी चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, रेस्टोरेंट्स नहीं आने चाहिए. सो हम वो आइटम लेवल पे काम करें. ऐसी जब भूख लगी होती है ना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा होता है सर्च करना. अच्छा, सिद्रातुल मुंतहा इज सेइंग compliance of the SOPs is really important. एक बीच में सवाल आया था, I can't find it. किसी ने पूछा था कि इस पे रजिस्टर करने के लिए, मे बी इट वाज मरियम का ही सवाल था, कि क्या आपका एक बहुत बड़ा लाविश किचन, डर्टी किचन अलग, बेकिंग यूटेंसिल्स ये वो सब कुछ होना चाहिए? अगर हमारे जैसे घरेलू छोटे छोटे किचन होते हैं अपार्टमेंट से, कोई शख्स ये फूड पैंडा होम शेफ बन सकता है? देखें, इसके अंदर एक बेसिक लेवल की कंप्लाइंस है जो कि हमारी फूड अथॉरिटीज की जो चेकलिस्ट है उससे हमने ली हुई है, और हम कोशिश करते हैं कि एक बेसिक लेवल की कंप्लाइंस जरूर रखें, क्योंकि देखें कस्टमर का एक्सपीरियंस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हाइजीन और सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम ये करते हैं कि एक बेसिक लेवल का चेक और कंप्लाइंस, हमारी एक टीम है जो कि आप जब ऑनबोर्ड हो रहे होते हैं तो वो आपकी किचन की जो है वो पिक्चर्स आके लेती है, और आपका ड्राई स्टोरेज चेक करती है, आपका फ्रीजर चेक करती है, या जो आपकी कोल्ड स्टोरेज है उसको चेक करती है, और वो एक बेसिक लेवल की क्लीनलीनेस आपकी होनी जरूरी है वहां से ऑपरेट करने के लिए. तो देखें, हाइजीन और सेफ्टी ऐसी चीज है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए साइज मैटर ये नहीं कर रहा कि इतना बड़ा किचन हो या ये छोटा किचन हो या जैसा भी हो, मतलब लेविश हो या नहीं हो, उसके अंदर वो सारी अप्लायंसेस लगे. इसको अगर मैं इमेजिन करती हूँ ना, विजुअलाइज करने के लिए, जैसे हम अमेरिका में कहते हैं बहुत सारे फूड ट्रक्स लाइन से खड़े होते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है. आपका घर वो एक फूड ट्रक है, आपको मार्केट दे दी है फूड पैंडा ने, एंड यू कैन कंटिन्यू. अच्छा, एक जैसा भाई जो फाइनेंशियल इस वक्त सोच रहा है, आपने उसको 7,000 और 3,000 पे ना बता ठीक है. फिलहाल सिद्दीकी पूछ रहे हैं कि ये जो पेमेंट आप करेंगे फूड पैंडा होम शेफ को, उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है और टैक्स पेयर बनना पड़ता है? ये भी जरा हल करें ना मसले हमारे. यार देखें, एक अच्छे सिटीजन के नाते आपको टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है. हम कोशिश ये करते हैं कि जो लोग टैक्स पेयर हैं हम उनको ऑनबोर्ड करें, लेकिन हम साथ में ये भी कोशिश करते हैं कि अगर वो टैक्स पेयर नहीं है तो हम उनको किसी तरीके से करवा के उनको टैक्स फाइलर करवाएं. तो हमारी ये देखें, हमारी तरफ से पूरी कोशिश, लाइक आई सेड, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन इकोसिस्टम, और उसके अंदर अगर कुछ लोगों की, मैं आपको लॉजिस्टिक्स में बताता हूँ, हमारे राइडर्स जो थे वो लोग, उनको ड्राइवर लाइसेंस लेना जरूरी है. तो जब हम कोई सिटी लॉन्च करते थे, और लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, जब हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे अपनी लॉजिस्टिक्स, हम कोई सिटी लॉन्च करते थे तो जो ट्रैफिक पुलिस के जो लोग थे वो आगे, उन्होंने बोला यार ये रोजाना की बेसिस के ऊपर 5-5, 600 लाइसेंस आज तक अभी
कभी हमने जिंदगी में नहीं बनाई, ये क्या बात हुई, ये क्या चक्कर हुआ है। हाँ, तो हमने बोला हाँ, कि ये हमने ये रख दिया है कि आपको अगर काम करना है आप ड्राइवर लाइसेंस लेकर आए, तो उससे वो सही। ऑटोमेटिकली कंप्लाइंट होगा। तो आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल कंपनी हमें इन चीजों के ऊपर जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज सुपर्ब। आई थिंक सवाल उनका ये था कि वो मैथ्स कर रहे होंगे ना अपनी, कि अच्छा अब इस पे टैक्स भी कटेगा भाई। नंबर वन, टैक्स तो 10% है। एज गुड वो रिस्पॉन्सिबल इनकॉर्पोरेटेड होता है, हाँ हाँ, वो वो आपको इनकॉर्पोरेट पे होता है, करना हमें है, करना वो चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड होता है, देखिए और वो इनकॉर्पोरेटेड मजेदार होता है बात उसमें। ये है, हाँ, हाँ जी, मजेदार बात ये है बिलाल, टैक्स दे हम सारे रहे हैं, रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं। तो जो रिटर्न फाइल आपका नहीं कर सवाल है ना, रही वो आपने अब रिटर्न्स फाइल शुरू करने। अच्छा है। जी, शुरू और पूछते हैं। एक बड़ा क्यूट सा सवाल आया, वसीम अब्बास ने कहा है, कैन आई ऑर्डर फूड पैंडा फॉर समवन एल्स? हाजिर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसका एड्रेस पता होना चाहिए बस आपको। या उसका 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 ये उसका बहुत एड्रेस पता होना चाहिए, उसकी पिन लोकेशन। उसका बेसिकली इसका तरीका ये होता है कि आप उसका जो पिन लोकेशन है वो वहाँ पर आप डालें, और पिन भी और एड्रेस भी दोनों वहाँ पे करें, और उसके बाद पे फोन के ऊपर को बता दें राइडर को कि आप वहाँ पे डिलीवर कर दें, तो इसमें कोई बड़ा हम्म। प्रॉब्लम नहीं। करके अच्छा देखें भाई, एक दफा। लेकिन गलती लोग अक्सर में ये करते हैं कि वो पिन जहाँ पर कर रहे हो, एड्रेस डालते हैं जहाँ पर डिलीवर करना होता है, पिन डालते हैं जहाँ वो खुद बैठे होते हैं। तो मैं एक दफा गलती कर चुका हूँ। मैं कराची में अपने घर पे मैंने भिजवाना था, मैं मुल्तान में बैठा हुआ था, और मैंने मुल्तान में मैंने रखा हुआ था पिन। वहां तो आ वो गया। उसने कराची में ऑर्डर प्रिपेयर किया, और उसने बोला सर आपका जो डिलीवरी जो पिन है वो तो मुल्तान की आ रही है, वहां कहाँ लेकर आऊं मैं। तो ओ नहीं माय गॉड। लेकिन ये ये छोटी होता है, लेकिन चीज। पता है, थोड़ा सा वसीम दिल भी बड़ा करें, यानी जहां पहुंचाना है वहां तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन अगर किसी और के पास भी पहुंच गया तो कोई आपके कोई आपके बात नहीं, यहाँ पे पार्टी कर कोई लेगा बात क्या? अच्छा, नहीं। एक सवाल, अब आप थोड़ी सदके के डिबेट है। रजिस्टर में डाल दें उसको। हाँ, हाजिर, डिबेट आई है। अब उन्होंने कहा बताएं। है रेस्टोरेंट्स आर कंप्लेनिंग दैट शेफ्स आर लीविंग एंड दे आर स्टार्टिंग देयर ओन होम शेफ बिजनेस। ये वो सैलॉन्स वाली डिबेट आ गई ना, जो आपका बेहतरीन सर्विस पर्सन होता है उसको रियलाइज हो गया कि यार आई कैन परहैप्स मेक मोर मनी, इट विल बी मोर कन्वीनियंट, मेरा अपना काम होगा। तो अब रेस्टोरेंट्स कह रहे हैं कि ट्रेन हमने किया, या ट्रेन चलो होके भी आया, प्लेटफॉर्म हमने दिया, और अब हमें हर्ट कर रहा है क्योंकि होम शेफ जा रहा है वो, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पर्सन कुकिंग फ्रॉम होम। अम, इसको इसको जो है ना, देखें ये एक बहुत लंबी डिबेट है, जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो करना चाहते हैं, वो अपने दे वांट टू ट्राई देयर लक, और अगर इफ इट वर्क्स आउट, इट वर्क्स आउट, ठीक है। इफ इट डजंट वर्क आउट, दे गेट बैक ऑन टू द जॉब। लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रेस रेस्टोरेंट्स राइट नाउ, जो जिनकी जो हु आर नॉट बीन एबल टू बिकॉज ऑफ द डाइन इन, को आपका डाइन इन बिल्कुल कट कट चुका हुआ है, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस केस ही नहीं बनता कि वो इस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो मैं तो ये बोलूंगा कि वो वाले रेस्टोरेंट जो हुआ ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग इट डाउन, डोंट क्लोज इट डाउन, take it to the home where you don't have to pay the rentals, where you and with the minimum labor you can actually start your you can keep the ball rolling। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि आप वही वॉल्यूम्स कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन यू कैन कीप द बॉल रोलिंग। आप इसको बिल्कुल 100% बंद ना करें, यू कैन टेक इट टू योर होम एंड यू कैन स्टिल वर्क इट अराउंड, आई क्योंकि थिंक देखें दैट्स अ रेंटल्स ग्रेट आइडिया। बहुत अच्छी या बात ये है, और इसको दूसरी तरह से भी देखें हाजिर, कि कई रेस्टोरेंट ओनर्स ऐसे हैं हु कैन नॉट अफोर्ड टू कीप देयर स्टाफ ऑन, और वो बेचारे, जाहिर सी बात है, आधा उनका कमीशन होता था, सेल्स पे डिपेंड करता था, या उनको कहते थे आपको टिप्स से मिल जाएंगे काफी सारे पैसे। तो अब जब वो सारा स्टाफ फारिग बैठा हुआ है, इट्स बिन अ मंथ, चलो लास्ट महीने की तो तनख्वाह आ गई थी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। सो इट्स अ गुड थिंग इफ यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। अच्छा जी, ट्रू। एक और सवाल आया फजल रहमान की तरफ से। हाय हाजिक, आई एम होममेड, होममेड, ओके, आई नीड टू ऑपरेट इन सहरी टाइम, इज इट पॉसिबल? सहरी में आप डिलीवरीज करवाते हैं हाजिक, हो सकता है नहीं, इन ऑर्डर पे? नहीं, वी आर कंप्लाइंग बाय द प्रोविंशियल ऑर्डर्स, तो अभी वो नहीं हो सकता। अच्छा, वेरी फिर सॉरी, एक और बात आई। घर पे बनाना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ मेरे बहुत सारे ये मेमन भाई जो है ना, इस वक्त बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी ने कहा टैक्स, इसमें टैक्स कटेगा। एक और ने पूछा है डिलीवरी चार्जेस, ये भी होम शेफ के खाते में है या ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो सो बेसिकली फूड पांडा एक फिक्स कमीशन चार्ज करता है यस। आपके ऑर्डर्स के ऊपर, और वो उसके अंदर डिलीवरी, मार्केटिंग, XYZ सब कुछ शामिल होता है। तो उसके अंदर और हमारा राइडर आपको पिक करता है, वही डिलीवर करता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती।
सही। अच्छा ये इन्होंने आपने इसका सब जवाब दे दिया था। शाहरुख का दोबारा मैसेज आया है। ही सेज वी आर ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ कैन आई कांटेक्ट यू गाइस? वी आर प्रोवाइडिंग देम विद वेजिटेबल्स, ऑल काइंड्स ऑफ pulses, oil, and few people are making homemade food and started selling us at nominal rates. We are asking them to pack in boxes and we are distributing it to related neighborhoods. So fantastic idea, Shahrukh. आपका हमने नोट कर लिया है प्रोफाइल, एंड somebody from the team is going to get in touch with you. अगर आप चाहें तो वैसे अपने बिहाफ पे restaurant.foodpanda.pk पे रजिस्टर कर दें and give us a little background and somebody will get in touch, right Haziq? Yeah, 100%. My team is already here. हाँ। They're taking notes. अच्छा, फिर एक और भाई ने सवाल किया है, अभी ये ये समझने वही की, भाई है। हाउ आर यू मेकिंग मनी? उन्होंने कहा अच्छा चले, डिलीवरी चार्जेस भी आपने कर दिए, शेफ को भी पैसे दे दिए, आप कैसे पैसे कमा रहे हैं? ये क्या फंडा है? नहीं, मैंने अभी बताया ना कि फूड पैंडा जो है वो एक फिक्स कमीशन लेता है आपकी डिलीवरी, आपके हर ऑर्डर के ऊपर। ओके, सो द कमीशन इज डिवाइडेड, इसके ओवर एंड अबव हिडन कोई चीज नहीं है। अच्छा जी, रिव्यू का ऑप्शन होगा, इजी करें, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दिस इज सम फीडबैक फॉर यू हाजिक। इसके अलावा नवीद ने कुछ पूछा है, यस, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन चॉइस फर्स्ट एंड देन वी हैव ऑप्शंस ऑफ रेस्टोरेंट्स और होम शेफ्स वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ कपल ऑफ मंथ्स। फिक्र ही ना करें, नई चीजें आ रही हैं, नए ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट थ्रू देम क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, और माशाल्लाह हम 50 मिनट से बातें कर रहे हैं। लेकिन जैन नजर ने कहा, हाँ जी, और अभी लोग जो है सवाल पूछते जा रहे हैं। मेरा अपने ख्याल है कि दिस इज अमेजिंग। हमें ये जो रिस्पांस है आपके पास भी जो आ रहा है, एंड पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड दिस इज द सेम काइंड ऑफ रिस्पांस दैट वी हैव बीन गेटिंग फॉर पास्ट 1 मंथ नाउ। अच्छा, 30% ये सायरा जी की फीडबैक आई है इसके बारे में। फिर क्या किसी ने कहा है, डज एवरी फेमस फूड आउटलेट विलिंगली एंगेज फूड पैंडा? ये तो दूसरी सर्विस का सवाल है। हाजिक, इफ यूड लाइक टू टेक दैट तो आप बता दीजिए। Does every famous food outlet willingly engage Food Panda? Many have their own delivery services. आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। आप सो इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि अगर आपकी कुछ ऑर्डर्स आते हैं जो कि फूड पैंडा के थ्रू आते हैं, वो फूड पैंडा खुद डिलीवर करता है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो आपको कॉल के ऊपर रिसीव होते हैं या आपकी अपनी ऐप होती है उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, वो भी फूड पैंडा डिलीवर कर देता है। तो आपको जो एज फार एज द लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न, उसकी आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खाना पकाने की फिक्र करनी है। आतिफ, इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम पहले कहते थे ना कि एक रेस्टोरेंट का फोन नंबर है, उसकी लोकेशन है, उसका रेस्टोरेंट है, क्या उसको फेसबुक पे होना जरूरी है या नहीं? फेसबुक के थ्रू आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, पीपल फाइंड आउट अबाउट यू, एंड व्हेन हम जैसे बहुत सारे भूखे लोग फूड पैंडा पे मौजूद हैं, तो आपका रेस्टोरेंट वहां होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि यू आर ऑल्सो इन द गेम एंड वी कैन ऑर्डर स्टफ टू यू। सही कह रही हूँ हाजिर? बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरा अपने ख्याल है कि अभी हमारे जो रिसेंट स्टैट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स अपनी डाइनिंग के कर रहे थे और फिर जब वो फूड पैंडा के ऊपर आए, उनके बिजनेसेस 4 फोल्ड 9 फोल्ड्स तक गए हैं उनके बिजनेसेस। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू एंगेज योर बिजनेस टू विद फूड पैंडा। सही। अच्छा, लास्ट सवाल ले लेते हैं, बल्कि ये सजेशन है। जैन मजर से प्लीज इनकॉर्पोरेट जैज कैश या इजी पैसा, बेसिकली मोबाइल वॉलेट की भी ऑप्शन होनी चाहिए, यू कैन सो यू कैन पे थ्रू दैट। कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं लाइक आई सेड, वो जो पैंडा पे है, जो हमारा अपना वॉलेट है, इट्स ऑलरेडी ऑन द वे। विद इन कपल ऑफ मंथ्स वी आर गोइंग टू बी इंटीग्रेट दैट। तो आप जो है ना उस वॉलेट के थ्रू जो है पेमेंट्स बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब इनके तो सारे सवाल कर लिए। हाजिक, आखिर में मेरा एक सवाल है, मुझे बताएं, होम शेफ के लिए कोई मिनिमल एज है? बिकॉज वन ऑफ द काइंडेस्ट, मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट टैलेंटेड शेफ आई नो इज ओनली 11 years old, एंड वो मेरा मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, एंड ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट रेसिपीज एंड ही इज अमेजिंग एट मेकिंग सैंडविचेस। तो उसने मुझे अभी SMS किया और उसने मुझसे पूछा यही है कि मैं होम शेफ फूड पैंडा के साथ बन सकता हूँ? तो बन सकते हैं, बिल्कुल 100% बन सकते हैं। आप जो है वो जो आपका कोई भी गार्डियन होगा उसको आप सामने रखें। बाकी ये कि बल्कि इनफैक्ट आप मुझसे इनका कांटेक्ट शेयर करें और वी विल मेक श्योर दैट वी गेट हिम ऑन बोर्ड। कोई मसला ही नहीं। सैफू, तुम्हारा काम हो गया। अब मैं सैफू को ये बताने लगी हूं कि द मोस्ट छोटू होम शेफ ऑन फूड पैंडा प्लेटफॉर्म। हाँ, ये देखो ना, ये भी जबरदस्त टाइटल हो गया। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ,
क्वारंटाइन शेफ्स आपको अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जैसे लोग सिर्फ क्वारंटीन में कुकिंग करते हैं, वैसे आमदनी में आपके पास टाइम नहीं होता. बट थैंक यू सो मच हाजिक, दिस वाज अ लॉट ऑफ फन. वंस अगेन आई वांट टू टेल पीपल, इसका स्केड्यूल मैं आपको बताऊंगी. ये जो जबरदस्त अमेजिंग फ्लीट ऑफ वेरी टैलेंटेड फूड पैंडा होम शेफ्स इकट्ठी हो गई है, जो अभी तक 1000 है, और इंशाल्लाह ताला इनका टारगेट है कि इसको 1 लाख होम शेफ्स को कनेक्ट करना है, जो घर बैठे अपने हुनर के जरिए, अपने जायके के जरिए कमाएंगे. सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन रजिस्टर. तरीका बहुत आसान है, लिंक आपके सामने है. restaurants.foodpanda.pk पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए और शुरू हो जाइए. मजेदार रेसिपीज बनाएं. और जो अच्छे अच्छे फूड होम शेफ्स हैं फूड पैंडा के, उनसे मुलाकात कराने का मकसद ये होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं उनको डिनर टाइम पे लेके आऊंगी, तो वो जो पका के आपको दिखाएंगे, पहली दफा आप लोग फूड डाउनलोड कर सकते हैं. हाजिर कितना टेम्पटिंग. आमतौर पे आप रेसिपी देखते हैं और आप इंतजार कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं जाऊंगी तो मैं अगली दफा इसको इकट्ठा करूंगी, फिर बनाऊंगी. बट नाउ यू विल वॉच समबडी एल्स कुक. फूड और पैंडा वो भी आप जो है वो रोजों में करेंगे ये काम. हाँ, नहीं, रोजा खुलने के फौरन खोलने के बाद ठीक है, ताकि बिल्कुल कम से कम हम लोगों को आजमाएं. थैंक यू वंस अगेन एवरीबडी. restaurant.foodpanda.pk 1 लाख होम शेफ्स का टारगेट है फूड पैंडा का. लेट्स हेल्प देम आउट. बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं और जो लोग जानते हैं कि किसी की रेसिपी बड़ी जबरदस्त है, कोई बहुत टैलेंटेड होम शेफ है, उनको भी ये आइडिया दें, कनेक्ट करें. एवरीबडी शुड हेल्प इन गेटिंग बैक अप, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को हमारी रेजिलियंस की जरूरत है. एंड वंस अगेन हासिक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. इसी के साथ हम पॉडकास्ट करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. आखिर में ज़ीशान जाहिद हमें कहा ग्रेट वर्क, सो वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर ग्रेट वर्क. थैंक यू वंस अगेन. इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.